اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سنجیدہ پروگرام میں حاضر ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ اس پورے نظام کو، پورے پروگرام کو نافع بنائے اور قبول فرمائے۔ یہ پروگرام ظاہر ہے کہ اسی انداز کا ایک پروگرام ہے جو ہمارے مدارس اور قرآن کریم کی خدمت انجام دینے والے ادارے اپنی کارگزاری پیش کرنے اور مسلمانوں کو ان کی اصل ذمہ داری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے منعقد کرتے ہیں۔ اسی نظام کے مطابق آپ نے بچوں کی تعلیم کا نمونہ بھی دیکھا اور سنا۔ ہمارے سامنے 2-3 بچوں کا نمونہ آیا اور اس سے بہت حسن ظن پیدا ہوا۔ چھوٹی سی بچی نے اتنی شاندار تلاوت کی، اس کے بعد بچے نے تلاوت کی، پھر ایک بچے نے تقریر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کل کچھ ایسا ہو گیا کہ حالات سے مراد کوئی تازہ قصہ نہیں بلکہ مسلسل جو امت کے احوال ہیں اور آگے کے حالات کے جو آثار ہیں ان کی وجہ سے ہر سوچنے والے آدمی کی طرح ہمارا ذہن بھی مایوسی تو نہیں کہتا، مایوسی کی اجازت نہیں ہے، مگر فکر اور تشویش کا شکار رہتا ہے، یہ کہنے میں حرج نہیں۔ اور سارے حالات کا جو سب سے مشکل پہلو ہے یا تشویشناک پہلو ہے، ایک تو وہ حالات ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو دنیا کی طرف سے آتی ہیں، دنیا کی حکومتوں کی طرف سے آتی ہیں، ہر علاقے کے صاحب اقتدار لوگوں کی طرف سے آتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ ہیں اور ان پر بات بھی کرنی ہے تھوڑی سی، لیکن جو سب سے زیادہ تشویش کی بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ان حالات کے نتیجے میں مسلمانوں کے اپنے مزاج میں، اپنی سوچ میں جو تبدیلی آنی چاہیے اور جو احساس پیدا ہونا چاہیے وہ شاید مجھے تو ابھی 10-20% بھی نظر نہیں آتا۔ یہ اصل تشویشناک بات ہے۔ میں ذرا اس کو اور آسان کر کے کہوں کہ دنیا والوں کی طرف سے جو پیش آتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو حالات ہیں اور وہ مقرر ہے پہلے سے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ اللہ کا کلمہ پڑھیں گے تو شیطان کی طاقتیں تو آپ سے ناراض ہوں گی، اور آپ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر چلیں گے تو شیطان کے مشن کی نمائندگی کرنے والے لوگ آپ کے مخالف ہوں گے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور نہ نئی بات ہے۔ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے عام ہونے کے پہلے دن سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کا سب سے خطرناک اور مشکل انداز میں سامنا خود حضور ہی کو کرنا پڑا ہے اور حضرات صحابہ، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے۔
सतेजा काट रहा है अजल से, ताइब रोज चराग मुस्तफी से शरार गुलाम। आज के हालात में भी वो ताकतें उसी तरह काम कर रही हैं। वसाइल बदले हैं, अंदाज बदले हैं, रफ्तार बदली है काम की, वो अपनी जगह ये तो इजादात का और हालात का नतीजा है, लेकिन काम वही है, मिशन वही है। दो लफ्जों में अगर उसको कहें तो दुनिया की ताकतों का मिशन है कि इंसानों को अल्लाह से दूर करके, ईमान से दूर करके, जन्नत में जाने के रास्ते से हटा के जहन्नम में जाने के रास्ते पर लगा दिया जाए। ये वो काम है जिसका शैतान ऐलान करके आया था। तो आज की दुनिया में कोई इल्जाम नहीं लगाते हैं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कहते, कोई अफवाह नहीं फैलाते। जो आलमी ताकतों की सोची समझी पॉलिसियां और उनके जो बाकायदा तयशुदा प्रोग्राम है, मंसूबे हैं, प्लान, उनकी रोशनी में कह सकते हैं कि यही काम सारी दुनिया में हो रहा है। हमारे मुल्क में भी हो रहा है। हमारे मुल्क में ये जो तालीमी पॉलिसी और उसके अंदर जो आह्वान बने हैं, स्कूलों के अंदर जो सूरत हाल है कि बच्चों के ईमान को बचाना मुश्किल हो रहा है। शिरकिया नारे लगवाना या शिरकिया नज़में पढ़वाना या शिरकिया अल्फाज कहलवाना ये एक आम बात होती जा रही है। और यूं समझ लें कि उन्होंने वही पुराना मिशन जिंदा किया जिसके बारे में बहुत पहले अकबर ने अपने मिजाहिया अंदाज में एक बात कही थी कि यूं कत्ल से बच्चों को बदनाम न होता, अफसोस के फिरौन को कालिज की न सूझी। कालिज गोया उनके नजदीक बच्चों के ईमान को बिगाड़ने की एक अलामत के तौर पर था। तो बिलाशुबा ये बात सही थी। और अजीब बात यह है कि अकबर 100 बरस पहले, 100 बरस पहले गए आए उन्होंने ये और आज भी उसी तरह ये बात साबित है। अगर आप हालात को देखें, तारीख को देखें इस सिलसिले में, तो जब से अंग्रेजों का गलबा हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि दुनिया पर, यानी बरतानिया आलमी ताकत पर, उस जमाने से ये काम दुनिया में हुआ है। और उसका मैं बहुत सरसरी सी बात, सरसरी से जाएगा, लेकिन वहां से यहाँ तक की बात कहता हूँ कि आज आपके मुल्क हर खित्ते में, हर इलाके में जो ईसाइयों के स्कूल हैं या भी होंगे, हर जगह है। बड़े शहरों की बात तो छोटे छोटे गाँवों में और हर सूबे में, हम तो अपनी आंखों से देखकर आपसे कह रहे हैं कि हर सूबे में, हर इलाके में है। कुछ सूबे आप जानते हैं कि उनकी मेहनतों के नतीजे में उनके मजहब के रंग में रंग भी चुके हैं। हिंदुस्तान के बाद सूबे शिमाल मशरक की रियासतों में आप देखें पूरा इख्तिलाफ है। और उसके अलावा जो कबायली इलाके हैं, आदिवासियों के इलाके हैं, जहाँ उनको काम करना आसान लगता है, तो तफसीलात बड़ी अजीब है और उससे अंदाजा होता है कि वो अपने मजहब के लिए काम करने में कितने मुस्तैद हैं। ये जो सूरत हाल है ये आज से नहीं है। उलमा से आप पूछें, हिंदुस्तान में जब मुगलिया सल्तनत ज़ाब्ते में बरकरार थी दिल्ली, यानी 1857 का वाक़या नहीं हुआ, उस वक्त से मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में मिशन स्कूल कायम। और इस सिलसिले में हजरत रहमतुल्लाह किरानी रहमतुल्लाह का वाक़या अजीब है। माना के नाम से तारीख पढ़ने वाले सब लोग वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों ने बाकायदा एक मिशन बनाया तबलीगी हमले का,
अपने पादरियों के जरिए, और नौबत यहाँ तक पहुंची कि दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होकर पादरी लोग खुल्लम खुल्ला अपने मजहब की तबलीग करने लगे। उन हालात में जिन उलमा ने उस फितने पर बंद बांधने का काम किया, बल्कि उसको घर बिठाने का काम किया उस जमाने के एतबार से, उनमें सबसे नुमाया और मशहूर नाम हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिन्होंने उनके सबसे बड़े पादरी का पीछा हिंदुस्तान से लेकर तुर्की तक किया था और उनकी खिदमत इस सिलसिले में अजीब। तो हुआ ये था कि अंग्रेजों से बराह रास्त टक्कर लेने की वजह से, जिस तरह हजरत कानौती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हजरात ने शामली में अंग्रेजों से गोया लश्कर बनाकर मुकाबला किया था, तो मौलाना रहमतुल्लाह साहब भी उसका एक थे और उन्होंने अपने इलाके में बाकायदा हुकूमत भी कायम की थी कराने के इलाके में। तो अंग्रेजों से बराह रास्त उनका नटाखा हुआ था, उसकी वजह से उनको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, मक्का मुकर्रमा पहुंचे। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद जब कुछ इत्मीनान नसीब हुआ तो उन्होंने खत लिखा अपने घर के लोगों को, और उसमें लिखा कि मेरे भाई का पोता यानी भतीजे का बेटा मोहम्मद सईद 10-12 साल का मैं छोड़कर आया हूँ, उसको उसकी तालीम के बारे में बताओ क्या पढ़ रहा है। तो यहाँ से जवाब गया कि आपके भतीजे जो मोहम्मद सईद के वालिद हैं वो अम्बाला में फला जगह मुलाजिम है, तो उनके बच्चे उनके साथ ही रहते हैं, तो मोहम्मद सईद अम्बाला में मिशन स्कूल में पढ़ रहा है। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने लिखा कि मेरी जिंदगी गुजर गई ईसाइयत का मुकाबला करते करते, और मेरे घर का बच्चा ईसाइयों के स्कूल में पढ़े कैसे होगा। तो हजरत ने फिर ये हुक्म दिया कि मोहम्मद सईद को मेरे पास भेज। चुनाचे उनको मक्का मुकर्रमा बुला लिया और खुद उनकी तालीम का इंतजाम किया, और हजरत हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ उनकी तरबियत के लिए उनको छोड़ा, और यही मोहम्मद सईद साहब थे जिन्होंने मदरसा सहूलतिया कायम किया मक्का मुकर्रमा में। मुझे अर्ज करना था कि उस जमाने से आज तक ये सिलसिला है, उनकी तरफ से अपने स्कूलों के जरिए से बज़ाहिर तालीम यकीनन होती है, लेकिन उसके पीछे तबलीगी मिशन है। मैं जितना जानता हूँ, मैं ये बात एतमाद से कहता हूँ कि ईसाइयों के जो स्कूल है वो तालीमी मिशन बाद में है, तबलीगी मिशन पहले। हमारे बिजनौर जिले में एक गांव में मदरसे का संग बुनियाद रखने के लिए हम लोग गए, मुख्तसर सा प्रोग्राम भी होता था। तो नजीबाबाद के इलाके में पता चला कि 11 बजे दिन प्रोग्राम शुरू होगा, इसलिए कि सामने बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें एग्जाम चल रहे हैं, तो उनकी शिफ्ट जो है 11 बजे खत्म होगी, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद आप, क्योंकि आवाज जाएगी, शुरू हो गया प्रोग्राम। मुझसे एक सामने आकर बताया कि जो स्कूल आप सामने देख रहे हैं इसमें 6-7 हजार बच्चे, जिनमें तकरीबन आधे मुसलमानों के आधे रहते हैं, और इसमें ये एग्जाम शुरू हुआ है। इसके शुरू होने से कुछ पहले सारे स्कूल के बच्चों को एक स्लिप उन्होंने तकसीम की, पर्चा तकसीम किया। उस पर ही लिखा था कि जब तुम पेपर लिखना शुरू करो तो ये दुआ पढ़ लेना। ये कुछ इंग्लिश में था, तर्जमा उसका ये था कि ए ईसा मसीह, इस पेपर को मेरे लिए आसान कर दे और इस इम्तिहान में मुझे आधा कामयाब। सारे स्कूल के बच्चों को ये पर्चा दिया गया था कि ये दुआ कर लेना पेपर लिखने से पहले। मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि मुझे यकीन सा नहीं आया। मैंने स्टेज पर बैठकर मजमे के सामने ये बात आई कि इस स्कूल के बारे में मैंने ये बात सुनी है, ये सही है। तो मजमे में से 2-3 आदमी एकदम खड़े हो गए कि बिल्कुल सही है, आपने सही सुना है। तो मेरी जबान से निकला कि इसके बाद भी अगर आप लोग अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना जारी रखते हैं तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आपके पास ईमानी गैरत बाकी नहीं है। मगर साहिब आए, मैं कहकर आ गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, सही चल रहा है सिलसिला, स्कूल भी वैसे ही चल रहा है। और मुझे जहाँ तक मालूम है
उस स्कूल में बाकायदा एक इमारत है जहाँ मजहब बदलने वाले लोगों के लिए इंतजाम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तबलीगी मिशन है। इसकी तफसीलात में आप जितना जाएंगे उतनी तकलीफ पड़ेगी। उसके मुकाबले में अपने हालात पर अफसोस होगा। एक लड़का है बनारस के इलाके का जो नेवी में मुलाजिम है, वो जाहिर नेवी में समंदरी जहाज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं। उसने मुझसे बताया कि किसी भी मुल्क में जाकर जहाज लंगर डालता है तो 1-2 घंटे के अंदर ही ईसाइयों के काबिल तबलीग के लिए आ जाता है। वो आकर जो भी मुसलमान हैं या यानी ईसाई के अलावा मजहब के लोग हैं उन पर मेहनत शुरू कर देते हैं। आप अंदाजा करें कि सीपोर्ट जो होता है बंदर का, वो भी तो एयरपोर्ट की तरह ममनुआ इलाका होता है। वहाँ हर आदमी बगैर परमिशन के नहीं जा सकता, लेकिन उनको परमिशन हासिल है और वो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और आप इसको आगे मैं बात को बढ़ाना चाह रहा हूँ कि ये जो ज़हनियत ये आलमी ताकतों की असल है और दुनिया में जो ताकतें भी काम कर रही है उनके पीछे से आप जाकर देखें तो आप उसमें यहूदी मिल जाएंगे, वो अपनी जगह ठीक है, मगर उनके आले काज सब हमारे मुल्क में जो पॉलिसियां चल रही है ये उसी आलमी पॉलिसी का तसलसल है, हिस्सा है। इस पर बहुत सी बातें हैं लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं समेटते हुए अर्ज करता हूँ कि ये दुनिया की ताकतों का मिशन है कि बच्चे को तालीम के राह से गुमराह किया गया। और जाहिर है तालीम हर बच्चे की जरूरत है। तालीम को इस अंदाज से लाजिम किया गया कि उससे किसी को बचने का रास्ता भी न मिले। चुनांचे आज के दौर में 3 साल में बच्चे को स्कूल भेजना है और अगर आप नहीं भेजते हैं तो वो आप बच्चे को उसके बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं। वो RTE है, राइट टू एजुकेशन, उसी कानून की बात है। 2008 में आया वो जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उस वक्त में मुसलमानों ने ये मुतालबा किया था कि इससे मदरसों को मुस्तस्ना किया जाए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दूसरी सब तंजीमें मुत्तफिक थी और हर एक ने अपने अपने तौर पर इसकी कोशिश की थी। मैं जमीयत उलमा के एक प्रोग्राम में शरीक था दिल्ली में, जो महमूद साहब ने बुलाया था और उसमें 300-400 लोग थे। उसमें आधे मदरसों के नुमाइंदे थे और आधे के करीब असली इदारों के लोग थे, तालीमी माहिरीन थे और लायर्स थे, माहिरीन कानून थे और बड़े बड़े काबिल लोग थे। एक ये ताज्जुब हुआ कि सब के सब मुत्तफिक थे इस बात पर। वो वकील साहब हैं, वो इंजीनियर साहब हैं, वो स्कूल चला रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, वो फलां है, एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के मुसलमान, सब मुत्तफिक थे इस बात पर कि मदरसों को इससे मुस्तस्ना होना चाहिए। मदरसों की शक्ल जो चल रही है मदरसों को उसी शक्ल में चलना चाहिए। सब ये कह रहे थे खुले तौर पर। उसके बाद मुझे जब मौका मिला बोलने का तो मैंने एक बात ये कही कि मैं ये समझता हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ कि ये तालीमी पॉलिसी, ये राइट टू एजुकेशन जो लाया गया है, ये असल में हमारी हुकूमत का ज़हन नहीं है, ये आलमी ताकतों का एजेंडा है। इसे हमारी हुकूमत भी नाफिज करने पर मजबूर है। और इसकी दलील के तौर पर मैंने ये कहा कि वैसे तो हम पहले से ये बात जानते हैं, उलमा इस चीज को उसको जानते हैं कि अरब ममालिक में जहाँ जहाँ अमेरिका को वसूल हासिल हुआ वहाँ पर तालीम के निजाम को उन्होंने हद इम्कान अपने रंग में रखा। ये बात जगी चुकी नहीं है, राज नहीं है। मुख्तलिफ मुल्कों में निसाब तालीम बदले गए। मुतय्यन तौर पर जो मुझे उस वक्त याद आया और मैंने बोला वो ये था कि 2003 में जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत इराक से खत्म की गई और उसकी जगह पर अमेरिका की नुमाइंदा हुकूमत आई, उसके 3 महीने के बाद, सिर्फ 3 महीने के बाद अखबार में खबर आई थी जो मैंने पढ़ी थी। वो ये खबर थी कि इराकी हुकूमत ने आर्डर जारी किया, फरमान जारी किया कि इराक की यूनिवर्सिटीज में जो इस्लामिक यानी इस्लामी विरासत का शोबा, इस्लामिक तालीम के शोबे हैं, उनके निसाब पर नजरे सानी की जाए।
اور नजर सानी का मतलब आप समझ लें कटौती, और क्या होगा नजर सानी करके। तो मैंने उससे समझा कि सद्दाम हुसैन जैसे आजादी था, सद्दाम हुसैन भी कौन सा वो देवबंद का फाजिल था, उसके जमाने में जितना कुछ यूनिवर्सिटियों में मजहब पढ़ाया जा रहा था वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको भी घटाने का प्रोग्राम तय कर दिया गया। और इस तरह के और नजीर हमारे सामने हैं। तो मैंने कहा ये आलमी ताकतों का एजेंडा है। प्रोग्राम के बाद जस्टिस सफीर अहमद ऊपर आए स्टेज पर, मुझसे कहने लगे कि मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, आपने हमारी आंखें खोल दी, हम इस मौजू पर सोचेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि ये दुनिया की ताकतों का प्रोग्राम है। अब हमारा क्या प्रोग्राम होना चाहिए? हम जो विजन रखते हैं वो ये है कि हमें मुसलमान जीना और मुसलमान मरना, और अपनी नस्लों के लिए भी यही इंतजाम करके जाना। मैंने हदीस पढ़ी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाक़ल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व मुहम्मदिर रसूला। वो आदमी ईमान का जायका चख ले, उसे ईमान का जायका मिल जाएगा जो अल्लाह को रब माने, खुशी के साथ, इत्मीनान, रज़ा और इस्लाम को अपना दीन और मजहब माने, इत्मीनान और रज़ा और खुशी के साथ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर माने, रसूल माने, रहनुमा माने, इत्मीनान और खुशी और रज़ा के साथ। ये हदीस है हमारे सामने। हम ये समझते हैं कि दुनिया की ताकतों के सामने सारी हदीसें हैं, उनको पता है कि मुसलमानों की ताकत कहाँ से आती है, ईमान की ताकत। लिहाजा उन्होंने इस जमाने में अपने मिशन में इस बात को शामिल किया है कि मुसलमानों के ईमान को जहाँ तक हो सके कमजोर किया जाए। दूसरे जो लोग हैं मुसलमानों के अलावा, उनको इस्लाम की तरफ आने से रोका जाए। इसलिए कि ये बात सच्ची है कि आज भी दुनिया में आज के बदतरीन हालात में जबकि मुसलमान अपने मजहब की तबलीग के सिलसिले में सारी कौमों से ज्यादा सुस्त हैं, ऐसे दौर में भी सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम ही है। तो ये ताकतें उसको जानती है, उन हकीकतों से वाकिफ है। तो उनका एक मिशन ये है कि लोगों को आने से रोका जाए। इसके लिए उनके मुस्तकिल प्रोग्राम है जिनमें मुसलमानों को बदनाम करना, सारी दुनिया में दहशतगर्दी का लेबल मुसलमानों पर चिपका देना, ये कोई राज नहीं है। सबको पता है कि आज इस जमाने में हमारा हुलिया तो दहशतगर्दी के साथ हमेशा जोड़ ही दिया गया है। हिंदुस्तान में बड़ी आसानी से मौलाना महमूद मदनी या मौलाना अरशद मदनी जैसे लोगों का फोटो लगाकर कलम आसानी से लिख दिया जाता है और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, एक आदत किसी बात हो गई। ये आदमी ताकतों की मेहनत है मुसलसल, जो कम से कम 2001 9/11 से अमल में आई। 9/11 जब हुआ था तो उस वक्त वो तबसरे उस पर हो रहे थे। किसी का मैंने ये तबसरा सुना था, उसने कहा था कि इस वाक़े के बाद 1-2 दिन के अंदर ही, इस वाक़े के बाद और इस वाक़े से पहले की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क होगा और अब एक मोड़ होगा दुनिया की तारीख का, 9/11 से पहले और 9/11 के बाद। चुनांचे को हम देख रहे हैं, उसका मुशाहदा हम कर रहे हैं। तो वो एक मुस्तकिल उनका प्रोग्राम है कि दूसरों को रोकने के लिए इस्लाम को मुसलमानों को बदनाम किया जाए, लेकिन खुद मुसलमानों की इस्तिकामत को खत्म करने के लिए उनका मुस्तकिल मिशन है और इसमें काम कर रहे हैं, जिसको मैं मुख्तसर लफ्जों में कह सकता हूँ तशकीक। मजहब के बारे में, दीन के बारे में शक पैदा करने की कोशिश है। अब आप यूट्यूब पर जाकर देख लें तो आपको अंग्रेजी और अरबी और उर्दू तीन जबानों के या हिंदी के इनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि इन तीनों जबानों में इस्लामी अहकाम को, खुद मजहब इस्लाम को, खुद अल्लाह को और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम की इस्लाम को मौजूद बना क्या बातें हो रही हैं। अगर कोई आदमी पक्का ईमान नहीं रखता या सही इल्म नहीं रखता वो उसका आसानी से शिकार हो सकता है।
परसों की बात है, देवबंद में अपने घर का था, एक कश्मीरी तालिब इल्म ने आकर बताया कि आज कश्मीर के 20 लड़के और लड़कियां सब मिलाकर 20 तालिबान दिल्ली से वापस आए हैं अपने घर और उन्होंने ऐलान कर दिया इस्लाम छोड़ने का। परसों मेरे लिए आया, फिर वो एक साहब हैं जो इस पर मेहनत करते हैं, उन्होंने जाकर उनसे गुफ्तगू की तो कुछ की समझ में आ गई बात और वो वापस लौट गए और कुछ ने कहा कि नहीं हम वापस नहीं जाएंगे। मुसलसल आप तालीम गाहों के आला शोबों में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो डिग्री वाले शोबे हैं उनमें जाकर अगर जायजा लेंगे तो मुसलमान या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले बच्चे यानी उनका बैकग्राउंड कौन सा भी मजहब हो वो आपको असिस्ट मिल जाएंगे बड़ी तादाद में। इस वक्त आम तौर से ये छोटा सा हल्का सा जायजा है, मेरी तो मालूमात बहुत कम है, मेरी मुताला भी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो समझ में आया मैंने अर्ज किया इन हालात का मुकाबला हमें करना है अपने मकतबों और मदरसों के वजह से। तो आप अंदाजा करें कि इस्लाम की अहमियत कितनी ज्यादा है। मसला है ईमान बचाने का, मसला है ईमान पर कायम रहने का, मसला है ईमान पर जीने और ईमान पर मरने का। हालात हमें मालूम और कहने को असहाबे इक़्तिदार कुछ भी कहें मगर उनके मंसूबे भी बिल्कुल वाज़ेह हैं। आज मुसलमान बनकर रहने को मुश्किल बनाया जा रहा है और इस सिलसिले में जो उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं। तो हमें इस मुल्क के अंदर एक तो अपने हुकूक को समझते हुए आईन के तहत जो हमें हक हासिल है उनको समझते हुए मजबूती के साथ हालात का मुकाबला करने की जरूरत है। हथियार नहीं डालेंगे यानी मतलब ये कि सरेंडर नहीं करना, हथियार के लफ्ज़ से कहीं गलत फहमी पैदा हो जाए। आजकल ये बड़ी मुश्किल है, जरा सी बात कहना मुश्किल, शायद आप लोगों को मालूम है लतीफ़ा है मगर मैंने सुना कि वो सच्चा है कि मुरादाबाद में एक थाना है, वहाँ उस इलाके में किसी ने FIR लिखवाने की कोशिश की पुलिस में कि मुसलमानों के यहाँ रात को असलहा आता है और उसके पहुँचने की इत्तला फजर की अज़ान में दी जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, असलहा खैरियत से पहुँच गया। अस्सलात का असलहा और खैर का खैरियत, और उसकी वजह से हाफिज सिद्दीक साहब मरहूम को जाकर वजाहत करनी पड़ी पुलिस से क्योंकि इसका तर्जुमा ये है, इसका ये मतलब है। तो अब हथियार डालने का बोले तो कहीं वो समझे कि हथियार लिए फिरते, हालांकि हथियार वो खुद लिए फिर रहे हैं और हुकूमत को उन्हें इस तरह आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए वरना इनको खुद खून के आंसू रोना पड़ेगा। जब इनके काबू से ये ताकतें निकल जाएंगी तो फिर इनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो ये ना समझे कि मुसलमानों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, वो अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। खैर हमें ये कहना है कि इन हालात में अपने दीन से, अपने मजहब से, अपने ईमान से और ईमान की हिफाजत की कोशिशों से हमें पीछे नहीं हटना और जहाँ तक मुमकिन हो कानून के रास्ते से अपना हक हासिल करने की कोशिश जारी रखनी है। इसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए और इसी के साथ साथ जो इदारे इस्लाम में लगे हुए हैं वो बहुत कम हैं। सच्ची बात यह है कि बहुत कम है, हालांकि ये बात भी हमें मालूम है, हम कोई बात एतदाल से हटकर नहीं कहते, हमें मालूम है कि बहुत सी जगहों पर मदरसे बहुत ज्यादा भी हैं, लेकिन देवबंद में ये बात तो आपको समझ में आएगी कि मदरसे बहुत हैं, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ, मैं देवबंद में 32 बरस से मुसलसल रहता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, 33वें साल तालीम शुरू हुआ है। देवबंद के महलों में आज भी मकतबों की जरूरत है, वो जरूरत पूरी नहीं हुई है और अगर ये जरूरत देवबंद में बाकी है तो कौन सी जगह होगी जहाँ बाकी नहीं है।
شدید ترین ضرورت ہے. اس وقت محنتیں ہو رہی ہیں، جمعیت علماء نے بہت تیز کر دی ہے اپنے مہم دینی تعلیمی بورڈ کے راستے سے، مسلم فضلہ بورڈ، فلاں اور بڑے بڑے مدرسے ادارے، الگ سے علاقائی تنظیمیں، بہت لوگ کام کر رہے ہیں. ایک ایک تنظیم اور ایک ایک مدرسہ سینکڑوں اور ہزاروں تک چلا رہا ہے، مگر سب ملا کر بھی ابھی تک میں جہاں تک سمجھتا ہوں 10-15% بچے بھی مکتبوں میں نہیں پہنچے. خصوصاً اسکول میں پڑھنے والے بچے، ان کی اکثریت ابھی تک مکتب میں نہیں آئی. تو یہ کوششیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور مدرسہ جس سطح کا بھی بن جائے، آپ کے علاقے میں کانپور میں تو ماشاءاللہ بڑے ادارے بھی ہیں، لیکن کانپور خود بھی تو بہت بڑا ہے، لہٰذا چند بڑے ادارے ہیں بھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ مزید محنت کی ضرورت ہے. ان اداروں کو استحکام کی، اسی کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں مسلمانوں کو، سچی بات ہے کہ ملک بھر میں جا کر ان علماء سے پوچھے جو جاتے ہیں، میں بھی ملک کے مختلف علاقوں میں جاتا ہوں، تو جو حالات ملتے ہیں ان سے بہت میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ وہیں میں آ گیا ہوں. ان حالات سے تشویش تو بہت زیادہ ہے. مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے منع کیا ہے مایوس ہونے کو، لیکن ڈر بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ بدلنے کے سلسلے میں کوئی جذبہ نہیں پایا. گناہ عام ہے، بری طرح سے عام ہے، اور بڑے بڑے گناہ عام ہیں. بعض گناہوں کا تو نام لینا اچھا نہیں لگتا، لیکن مثلاً نشہ اس درجے عام ہے کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بچے ہی نہیں، بچیاں باقاعدہ عادی بنائی جا رہی ہے نشے کے. اور یہ کام کشمیر سے اور کیرلا اور آسام سے اور گجرات راجستھان تک ہر جگہ ہو رہا ہے. میں صوبوں کے نام لے کر آپ سے بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں جا کر میں نے خود پوچھا اور جانا ہی. اسی طرح سے سودی قرضہ میں پورے ہندوستان میں نہیں جانتا، میں جن آبادیوں میں گیا ہوں چھوٹی یا بڑی، مجھے کوئی آبادی نہیں ملی جہاں پر مسلمان سودی قرضے میں بندھے ہوئے نہ ہوں. ان صوبوں میں بھی جو خوشحال مسلمانوں کے بہت برا حال ہے، بہت حالات خراب ہے. تو بدلنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو پیغام دینے کی ضرورت ہے. سارے مسلمانوں سے یہ کہنا ہے کہ بھائی مسلمان بنایا ہے اللہ نے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. تحیہ کر لو، مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا. اگر خدا نہ خواستہ اس معاملے میں رکاوٹ آتی ہے، ہم لڑائی کی اپیل نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم طاقتوں سے کہتے ہیں، حکومت سے کہتے ہیں، اپنے ہندو بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جس طرح تمہیں اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے 100%، اسی طرح ہمیں بھی اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے. اور تم اتنی آسانی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے ہمیں ڈر لگنے لگا، اس لیے کہ ایک طبقہ اب ایسا ہے مختلف علاقوں میں، مختلف آبادیوں میں کنارے پر کھڑا ہے. بہت خطرناک صورت ہے، کنارے پر ان کو واپس بیچ میں لانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. یعنی خطرہ ہے ایمان کے سلسلے میں. لیکن بہرحال اپنی جگہ محنتیں جاری رکھنی چاہیے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جس طرح تمہیں اپنے مذہب پر قائم رہنے کا حق ہے، 100% وہی حق ہمارا بھی محفوظ ہے، اور ہم اس حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے. ہمیں یہ طے رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کبھی یہ نوبت آ جائے کہ گویا طے کرنا ہے ایک چیز کو، تو ہمیں ایمان کو اختیار کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان بچانے کے لیے جان دینے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی ایسی مجبوری آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جان دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جان اپنے وقت پر جانی ہی ہے. اگر اسی راہ میں چلی جائے، ایمان بچانے کے لیے چلی جائے، جو سعادت ہے وہ ڈرنے کی بات نہیں. مسلمانوں کو حالات سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، اور خطرات سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، اور موت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ ایمان تو ہر آدمی کا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا چاہیے. اللہ سے ہزار دفعہ عافیت اللہ ہر صاحب ایمان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ایسی صورتحال بنے تو مسلمانوں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں اور اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں. اس کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ کام کریں گے، جان پھر بھی نہیں بچے گی، عزت پھر بھی نہیں بچے گی، مرنا تو پھر بھی پڑے گا.
اس کا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسلمان کو مسلمان جینا اور مسلمان مرنا اس کا فیصلہ ہمیشہ کر کے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے اور پوری امت کے لوگوں کے لیے اس کام کو آسان فرمائے. اور یہ حضرات جو یہاں فیضان بھائی اور ان کے رفقا محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں میں برکتیں عطا فرمائے، قبولیت سے نوازے اور ان کے کام میں اور زیادہ نامعیت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.